پاکستان کا صومالیہ کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیلی اقدام صومالیہ کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ ہے۔ اسرائیل کی کارروائی بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی اقدام خطے میں سنگین اثرات پیدا کر سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جدہ میں OIC وزراء خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب۔ جدہ میں OIC وزراء خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی اجلاس میں شرکت کے لیے OIC سیکریٹریٹ آمد۔ سیکریٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طاہا اور OIC میں پاکستان کے مستقل نمائندے نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم OIC رکن ملکوں کے وزراء خارجہ کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی ملکی معیشت میں مضبوط شمولیت، طویل المدتی استحکام، پائیدار ترقی اور روشن مستقبل کی ضمانت۔ پاکستان کی ترسیلاتی زر میں تاریخی اضافہ۔ دسمبر 2025 میں ترسیلات زر $3.6 ارب سے تجاوز کر گئیں۔ یہ گزشتہ سال اسی عرصے کی $3.1 ارب کے مقابلے میں 17% زیادہ رہیں۔ نئے مالی سال کی پہلی شش ماہی میں مجموعی ترسیلات $19.7 ارب تک پہنچ گئیں۔ مجموعی ترسیلات زر $41 ارب سے تجاوز ہونے کی توقع ہے۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے مارکہ حق میں تاریخی کامیابیاں حاصل کی۔ بھارتی جارحیت کے بعد بیرون ملک پاکستانیوں نے پاکستان کے مفادات کا ڈٹ کر دفاع کیا۔ 2025 میں دفاع، معیشت، سفارتکاری، کھیل اور دیگر شعبوں میں بھی پاکستان کو کامیابیاں ملیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے ریکارڈ ترسیلات زر پاکستان سے محبت اور اعتماد کا عملی ثبوت ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا پریٹوریا میں پاکستان جنوبی افریقہ ایسوسی ایشن کی زیر اہتمام تقریب سے خطاب۔ SCCP کی اصلاحات سے کاروباری رجسٹریشن میں نمایاں اضافہ۔ ماضی میں ادارے کو قومی سطح پر وزیر اعظم نے ریفارمز چیمپئن کے اعزاز سے نوازا۔ اصلاحات سے کاروبار کے آغاز میں آسانی پیدا ہوئی۔ اصلاحات سے کاروبار سے منسلک تعلیمی اخراجات میں کمی، سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ ٹیکنالوجی پر مبنی ریگولیٹری نظام کے ذریعے کاروبار میں آسانی، شفافیت اور پائیدار معاشی ترقی کے فروغ کے لیے اصلاحات کا عمل جاری رکھیں گے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن۔ SIFC کی ہم آہنگ حکمت عملی سے حکومت اور نجی شعبے کی شراکت داری مزید مضبوط۔ پاکستان میں معاشی نظم و ضبط اور صنعتی ترقی کی نئی رفتار حاصل۔ غیر ملکی سرمایہ کاری اور برآمدات میں اضافے کے لیے اقدامات جاری۔ مہنگائی اور پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی اور زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری معیشت کی مضبوطی کی واضح علامت۔ کاروباری حلقوں میں پاکستان کی اقتصادی سمت پر اعتماد نمایاں حد تک بڑھ گیا۔ صدر امریکن بزنس کونسل اکرم ولی محمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے اسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم۔ لاہور میں نواز شریف کینسر اور جناح کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ کو اسی ماہ فعال بنانے کی ہدایت۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی بھرتیوں کا عمل جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لیڈی ولنگٹن اسپتال کی تعمیر نو بھی جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم۔ کراچی میں ٹریفک مسائل کے حل کے لیے خوشخبری۔ NLC کا ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور اور ملٹی ماڈل لاجسٹکس پارک پپری پر کام کا آغاز۔ NLC منصوبے کو $400 ملین کی غیر ملکی سرمایہ کاری سے مکمل کرے گا۔ منصوبے کا پہلا مرحلہ 4 ماہ میں مکمل ہوگا۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی اور چیئرمین اور CEO DP ورلڈ گروپ سلطان احمد بن سولیم کی سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت۔ طالبان رجیم کے زیر تسلط افغانستان میں صنفی امتیاز کے خلاف افغان خواتین کا عالمی مہم شروع کرنے کا اعلان۔ افغان خواتین کے ایڈوکیسی گروپ نے 8 ہفتوں پر مشتمل مہم اب صنفی امتیاز ختم کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ خواتین کو عوامی زندگی سے مکمل طور پر باہر کر دیا گیا ہے، جبکہ لڑکیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ یہ مہم طالبان جبر کے خلاف افغان خواتین کی کھلی مزاحمت ہے۔ ایران میں حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی بہترین سفارتکاری مرکز نگاہ۔ علاقائی تنازعات کے خاتمے اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتکاری اہم قرار۔
अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट का पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत और मौसर सिफारतकारी का एतराफ़। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद नुमायां तौर पर बेहतर हुए। ईरान में मुदाखलत करने से खित्ता गैर मुस्तहकम हो जाएगा। जनूबी एशिया में अमरीका का अहम शराकतदार पाकिस्तान भी ईरान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का हामी नहीं। द नेशनल इंटरेस्ट। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे 13वें रोज भी जारी। पुरतशद्दुद वाक़यात में सिक्योरिटी एहलकारों समेत मुतादिद अफराद हलाक। ईरानी फ़ौज का मुल्क में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के तनाजुर में कौमी मफादात के दिफा के अज़्म का इजहार। इसराइल अमन अमान और मुल्क में अवामी सलामती को खराब करने का जिम्मेदार है। दुश्मन एक बार फिर फितने और फसाद को हवा देने के दर पे है। ईरानी फ़ौज। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस सिलेंडर धमाका, 6 अफराद जाँ बहक। सिलेंडर शादी वाले घर में फटा जहां मेहमान भी मौजूद थे। धमाके में जाँ बहक अफराद में दुल्हा और दुल्हन भी शामिल। धमाके से मजमूई तौर पर 4 घर मुतासर हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकाल लिया गया। वज़ीर आज़म का सिलेंडर धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध और सर्दी की लपेट में। मोटरवेज के बेशतर हिस्से बंद। कौमी शाहरात पर धुंध का राज। धुंध में सुबह 10 बजे तक शाम 6 बजे महफूज सफरी औकात हैं। तर्जमान मोटरवेज सेंट्रल पुलिस रीजन। पाकिस्तान श्रीलंका T20 सीरीज तीसरा T20 मैच आज दम्बूला में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में पाकिस्तान ने 6 विकेटों से कामयाबी समेटी। दूसरा T20 मैच बारिश की नजर हुआ। सीरीज PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बिग बैश लीग T20 आज भी 2 मैच सिडनी और हुबर्ट हुरिकेन्स और सिडनी सिक्सर्स का मैच बारिश की नजर। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया गया। इवेंट के 32वें मैच में एडलेड स्ट्राइकर्स और पर्थ। बिग बैश लीग PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। इस्लामाबाद में प्रोफेशनल MMA लीग इनफाइनाइट चैंपियनशिप। पाकिस्तानी MMA फाइटर अनीता करीम ने तारीख रकम कर डाली। पाकिस्तान में खवातीन की पहली प्रोफेशनल विमेंस MMA फाइट अनीता करीम के नाम। अनीता करीम ने ईरान की परिसा शमसाबादी को पहले राउंड में नॉकआउट किया। और मकरान डिवीजन की तारीख में पहली मरतबा 5 किलोमीटर मैराथन रेस में मकरान डिवीजन से नौजवान और शहरियों की भरपूर शिरकत। रेस तुर्बत प्रेस क्लब से शुरू होकर तुर्बत फुटबॉल स्टेडियम पर मुकम्मल हुई। जोसक तुर्बत के अयाज बलोच ने मैराथन दौड़ में पहली पोजीशन हासिल की। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे के आगाज में आपको आगाह करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने इसराइल के सोमाली लैंड को अलग रियासत के तौर पर तस्लीम करने के गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है और इसराइली वज़ीर ख़ारजा के सोमाली लैंड दौरे को इंतहाई इश्तियाल अंगेज करार दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हुसैन रजा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा के 22वें गैर मामूली इजलास में खिताब करते हुए कहा कि सोमालिया की बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदें नाकाबिल तनसीह हैं। इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इक़दाम सियासी जारियत और हॉर्न ऑफ अफ्रीका और रेड सी के अमन के लिए खतरा है। and subsequent unwarranted and highly provocative visit of its foreign minister to Somaliland. No external actor has either the legal standing or the moral authority
to alter that fundamental reality. नए वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि गजा में जंग के खात्मे और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए आलमी कोशिशें जरूरी हैं। As a frontline supporter of the UN Security Council Resolution 2803 and the comprehensive plan to end the Gaza conflict, Pakistan reiterates the intention to contribute to its successful implementation thereof with a view to ensuring sustainability of the ceasefire, bringing an end to the war of Gaza, to secure a dignified life for the Palestinian people who have endured prolonged humanitarian suffering, and leading to a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood. उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर तनाज़ा खित्ते के अमन के लिए खतरा है। कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। The unresolved Jammu and Kashmir dispute remains the primary source of conflict in South Asia and a nuclear flashpoint. There is an urgent need for renewed and concerted efforts under the UN auspices to secure a just, lasting and peaceful resolution of the dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions and aspirations of the Kashmiri people. नए वजीर आजम इसहाक डार ने OIC और आलमी बरादरी से सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की हर कार्रवाई की मुखालफत का मुतालबा किया है। हुसैन रजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इजलास में शिरकत के लिए OIC सेक्रेटेरिएट आमद पर सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा और OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म OIC रुकन मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तकरीब में सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक, जद्दा में पाकिस्तान के कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रबानी, सऊदी मुअज़्ज़ज़ीन, मुमताज़ पाकिस्तानी शहरियों और पाकिस्तानी कौंसल जद्दा के हुकाम ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के दौरान नई इमारत के हाथे में पाकिस्तानी परचम लहराया गया, सब्ज़ाज़ार में पौधा लगाया भी गया। इफ्तिताह के मौके पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए दुआएं की गईं। मंसूबे की खुसूसियात को उजागर करने वाली एक मुख्तसर वीडियो रिपोर्ट दिखाई गई। तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा की कोशिशों और सऊदी अरब के हुकाम की जानिब से मंसूबे को हकीकत बनाने के लिए फराहम की जाने वाली मुआवनत को सराहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत मौसर कौंसलर खदमात की फराहमी के जरिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत मौसर कौंसलर खदमात की फराहमी के जरिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इमारत और सहूलियात का जायजा लेने के बाद नायब वज़ीर आज़म ने मंसूबे की तकमील पर इत्मीनान का इज़हार किया और ऑपरेशंस और कौंसलर खदमात की मुंतकली की मंजूरी दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब का मगरबी खित्ता तकरीबन 18 लाख पाकिस्तानियों का घर है। नई इमारत और सहूलियात से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खिदमात को आसान बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में विफाक के ज़ेर एहतमाम तरक्याती मंसूबों के हवाले से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दी है। कमेटी पेशावर का दौरा करेगी और अवामी नुमाइंदगान से मुलाकात करके मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस दौरान सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अवामी फलाह, तरक्याती मंसूबों और गवर्नेंस से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर आज़म ने वफ़द से गुफ्तगू में कहा कि हमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत अपने दायरा इख्तियार के तहत मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जारी वफाकी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील और अवामी मसाइल का हल वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म ने बताया कि कुछ अर्सा कबल हरीपुर में सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा में मेरिट पर लैपटॉप्स तकसीम किए गए। इन नौजवानों से मिलकर खुशी हुई। यही नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। नौजवानों के लिए आइंदा भी मेरिट पर लैपटॉप्स देने की पॉलिसी जारी रहेगी ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। शुरका ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं और अवामी मसाइल पर सूबाई हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी भी मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म ने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी कोशिशें पूरी करें और इसको अव्वलीन तरजीह बनाएं।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP की डिजिटल और इंतजामी इस्लाहात के बायस मुल्क में कारोबारी रजिस्ट्रेशन में नुमाया इजाफा और शफाफियत में बेहतरी देखने में आ रही है। कमीशन के मुताबिक इस्लाहात के बाद कारोबार शुरू करने का अमल आसान हो गया है, जबकि तामीली अखराजात में कमी से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। SECP का कहना है कि रवां बरस नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में खातिर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। माजी में इस्लाहात के एतराफ में वज़ीर आज़म की जानिब से SECP को कौमी सतह पर रिफॉर्म्स चैंपियन का एजाज भी दिया जा चुका है, जो कारोबारी माहौल की बेहतरी की अक्कासी करता है। पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में तारीखी बुलंदी, मुल्की मईशत और आलमी एतमाद में खुशाइन पेशरफ्त है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भी भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र का एक और रिकॉर्ड कायम हुआ है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के भरपूर एतमाद और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पर मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने बताया कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र दिसंबर 2025 में 3.6 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गईं। दिसंबर 2025 में तरसीलात ज़र दिसंबर 2024 के 3.1 अरब डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 17% ज़ायद रहीं। दिसंबर 2025 में तरसीलात ज़र नवंबर 2025 के 3.2 अरब डॉलर के मुकाबले में 13% का इजाफा हुआ। मुशीर बराए वज़ीर ख़जाना का मजीद कहना है कि रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की वजह से माली साल 2026 की पहली शशमाही में मजमूई तरसीलात 19.7 अरब डॉलर तक पहुँच गई। माली साल 2026 की पहली शशमाही में मजमूई तरसीलात ज़र गुज़श्ता साल के मुकाबले में 41% ज़्यादा हैं। माली साल 2026 में मजमूई तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावुज़ होने की तवक्को है। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की जानिब से सबसे ज़्यादा 813 मिलियन डॉलर्स की तरसीलात हुई। दिसंबर 2025 में मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई तरसीलात 726 मिलियन डॉलर्स रहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बरतानिया से 560 मिलियन डॉलर्स और अमरीका से 302 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत में मजबूत शमूलियत, तवील मुद्दती इस्तेहकाम, पायदार तरक्की और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। SIFC की हम आहंग हिकमत अमली से हुकूमत और निजी शोबे के दरमियान शराकत दारी मज़ीद मजबूत हो गई है, जिसके नतीजे में कौमी मईशत में मुस्बत पेशरफ्त सामने आ रही है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना है कि हुकूमत निजी शोबे के साथ करीबी ताउन के जरिए मुआशी बहाली और इस्लाहात के अमल को तेज़ कर रही है। उनके मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी और बरामदात में इजाफे के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि महंगाई में कमी, शरह सूद में नरमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी मईशत की मजबूती की वाज़ेह। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के लिए कामयाबियों का साल साबित हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में दिफा, मईशत, सिफारतकारी, खेल और दीगर शोबों में पाकिस्तान ने नुमाया कामयाबियाँ हासिल की। साउथ अफ्रीका के शहर प्रेटोरिया में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के बरवक्त फैसलों के बायस पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की की राह पर गामज़न है। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में तारीखी कामयाबियां समेटी और पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। उन्होंने कहा कि ये जंग पूरी पाकिस्तानी कौम ने इत्तेहाद के साथ लड़ी और दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं। पाकिस्तान पर किसी भी नौइयत का हमला हुआ तो हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मार्का हक की तरह भरपूर जवाब देगा। उन्होंने कहा कि दिसंबर में 3.59 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र ने कौमी मईशत को मजबूत सहारा दिया, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन से मोहब्बत और एतमाद का अमली सबूत है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान के हकीकी सफ़ीर हैं, जिन्होंने मेहनत, कुर्बानी और अज़्म के साथ मेज़बान ममालिक में अपना मकाम बनाया। SIFC के जरिए सरमायाकारी के लिए वन विंडो सहूलत कायम की गई ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी बाएतमाद अंदाज में सरमायाकारी कर सकें। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादत देना नागुज़ीर है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक हल किए बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नए हस्पताल नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल लाहौर में जना और सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट समेत दीगर की जल्द तकमील की डेडलाइन दे दी है। इसी के साथ लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सेहत के हवाले से इजलास में लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर और जना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को इसी माह ओपन करने की हिदायत की और कहा कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में पाकिस्तान भर से आने वाले हर कैंसर मरीज का इलाज होगा। वज़ीर आला
आला ने लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आगाज के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी। वजीर आला को बताया गया कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर की नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर में मरीजों के लिए वेटिंग एरिया, सराय, मस्जिद और डॉक्टर्स की रिहाइशगाहें मुकम्मल हो गई हैं। इजलास को मजीद बताया गया कि पाकिस्तान के पहले नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर का इसी माह आगाज होगा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में डॉक्टर्स और प्रोफेशनल स्टाफ की भर्तियां शुरू हो गई हैं। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट की 219 असामियों के लिए इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। इजलास में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर के सरबराह की तैनाती के लिए आसामी दोबारा मुश्तहर करने का फैसला किया गया। और कराची में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए खुशखबरी, एनएलसी डायरेक्टेड फ्रेट कॉरिडोर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क पेपरी पर काम का आगाज हो गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का संग बुनियाद रखने के लिए शानदार तकरीब का इन्नकाद हुआ है। वफाकी वजीर बराए रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी और डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुल्तान अहमद बिन सोलिया मेहमान खुसूसी थे। कराची बंदरगाह पर बजरिया रेल माल बर्दारी का निज़ाम न होने की वजह से कंटेनरों का रश मामूल है। तरसील के निज़ाम में सुस्त रवी मौशी सरगर्मियों पर भी मनफी असरात डाल रही है। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क पिपरी की तामीर इन मसाइल का देरपा हल है। एनएलसी मंसूबे को $400 मिलियन की गैर मुल्की सरमाकारी से मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल करेगा। इस मंसूबे का पहला मरहला 4 माह में मुकम्मल होगा। और आपको बताएंगे, ईरान में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी मरकज़ निगाह बन चुकी है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत और मौसर सिफारतकारी का एतराफ़ कर लिया। द नेशनल इंटरेस्ट ने इलाकाई तनाज़ात के खात्मे और खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारतकारी को अहम करार दिया। जरीदे के मुताबिक वेनेजुएला की सूरत हाल के बाद वाशिंगटन के सख्तगीर हलकों में ईरान को अगला हदफ बनाने का तस्वुर मजबूत हुआ है। जरीदे के मुताबिक सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन की सूरत में अमरीका मुदाखलत करेगा, ताहम इसकी नौयत वाज़ेह नहीं है। ईरान के साथ वेनेजुएला जैसा रवैया न सिर्फ नाकाम तस्वुर होगा बल्कि जनूबी एशिया में एक संगीन कसीरुल जहती बहरान को जन्म दे सकता है। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई की मुखालफत सिर्फ खलीज फारस की तक महदूद नहीं, ये पूरे खत्ते में फैली हुई है। जनूबी एशिया में अमरीका का अहम शराकतदार पाकिस्तान पर ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई का हामी नहीं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद नुमाया तौर पर बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान पुरतशद्दुद तरीके से ईरान में हुकूमती निज़ाम की तब्दीली की हिमायत नहीं करता क्योंकि इससे इंतशार बढ़ने का खदशा है। जरीदे के मुताबिक इस सूरत हाल से दहशतगर्दों को तक़वियत मिलेगी जो पाक ईरान मुश्तरका सरहद पर दोनों अतराफ में सरगर्म हैं। ईरान में रजीम चेंज के बाद फितनल हिंदुस्तान को वसी पनाहगाह और हथियार मुयस्सर आ सकते हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान में मुहाजिरीन के हुजूम का इम्कान एक और बुनियादी कौमी सलामती का मसला है। ईरान वेनेजुएला के बरक्स मजबूत फौजी ताकत है और खलीज फारिस में तेल की तरसील मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान को भारत से कशीदगी और अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना हमलों का सामना रहता है। पाकिस्तान अपनी मगरबी सरहद पर जंग और बदअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सूरत हाल फौजी हल की जानिब नहीं बल्कि एक सिफारती रास्ते की जानिब इशारा करती है। अमरीकी जरीदे का कहना है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ख़त्म करने से लेकर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की हिफाजत तक जंग के बजाय अमरीका को इलाकाई शिराकतदारों को इस्तेमाल में लाना चाहिए। अमरीका ऐसे इलाकाई शिराकतदारों से फ़ायदा उठाए जिनका इस्तेहकाम में हकीकी मफाद हो। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अहम बात यह है कि पाकिस्तान के ईरान और अमरीका दोनों के साथ अहम सिफारती राब्ते और ताल्लुकात हैं। माजी के बरक्स ईरान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सलामती के मुआहिदे का खैर मकदम किया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान इस सूरत हाल में मदद कर सकता है। वो पहले ही कशीदगी कम करने की कोशिशों में मसरूफ है। ईरान में मुदाखलत करने से खित्ता गैर मुस्तहकम हो जाएगा। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक मुस्तकबिल की राह पाकिस्तान जैसे मुल्कों की दूरंदेश रियासती हिकमत अमली और सिफारतकारी से मुतय्यन होती है। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी और आलमी असर रसूख की दुनिया मोतरफ है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान बेहतरीन सिफारतकारी की वजह से खत्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर रहा है। सियासी और अस्करी क़यादत की कौमी बसीरत की बदौलत न सिर्फ मशरक़ वस्ता बल्कि पाकिस्तान के अहम सिफारती किरदार को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे 13वें रोज़ भी जारी। पुरतशद्दुद वाक़यात में सिक्योरिटी एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान भर में इंटरनेट बंद है। ईरानी फ़ौज ने मुल्क में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के तनाजुर में कौमी मफादात के दिफा के आज़म का इज़हार करते हुए कहा कि इसराइल अमन अमान और मुल्क में अवामी सलामती को ख़राब करने का जिम्मेदार है। जो है वो दिए और राशिद महनाज साहब और इनकी टीम ने हमें
1000 کمپیوٹر اٹک کے لیے دیا، اور رستے میں میں نے انہیں کہا کہ 100 آپ نے اور دینے ہیں کہ 1100 ہو جائیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ 1100 پورے کریں گے، اور ہم نے اس کو اس طریقے سے تقسیم کیا کہ ہر تحصیل میں 200 جانڈ، 200 پنڈی گیب، 200 فتح جنگ، 200 حسن ابدال، 200 اٹک تحصیل اور 100 ہزرو۔ تو یہ 1100 کمپیوٹر اللہ کے فضل و کرم سے راشد میناز صاحب کے تعاون سے ہم پورے ڈسٹرکٹ اٹک میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دے رہے ہیں۔ اس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ٹیم، جناب ڈی سی صاحب راؤ عاطف صاحب، سی ای او ایجوکیشن اے سی صاحب، ان کی ساری ٹیم، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس فنکشن میں بڑا بھرپور تعاون کیا، کیونکہ میں نے ملک سے باہر جانا تھا اور راشد میناز صاحب بھی بزی تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ایک پروگرام جو ہے وہ ہو جائے، تو آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ پروگرام ہو گیا۔ اس میں جناب عاطف شاہ صاحب، جناب ملک امانت صاحب، ان کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے بھی یہ 2 دن بڑی محنت کی، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ٹیم نے بھی بھرپور محنت کی، اور ہم یہ کامیاب ہوئے آج کا یہ پروگرام کرنے میں۔ باقی دوستوں کو، جناب حاجی اختر صاحب، جناب جلیل صاحب، ملک جلیل صاحب، ہمارے تحصیل صدر ملک اصغر صاحب، ہمارے کیسان ونگ کے صدر جناب آصف خان کال صاحب، اور ساری ہماری ٹیم، اور یہاں پہ عمادین جنگ، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک پازیٹیو حصہ ہمارا جو ہے وہ یہاں پہ شامل ہوا، اور انشاءاللہ میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ جو گورنر کی سیٹ دی ہے، یہ آپ کی امانت ہے، پورے پنجاب کی امانت ہے، لیکن اسپیشلی اٹک کی امانت ہے، اور اس گورنرشپ میں میں نے بالکل 1 منٹ کے لیے بھی جو ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھنا۔ میں نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، کہ میں آپ کو ڈیلیور کر سکوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ملک امانت صاحب نے جیسے یہاں پہ بہت ساری چیزیں گنوائیں، وہ ساری چیزیں ہم نے اسی طرح مختلف جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان سے یہ سارا کچھ کروایا۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ موقع ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں۔ مجھے موقع ملا، سی ڈی اے کی الیکٹرک بسیں تھیں، میں نے انہیں کہا کہ جی مہربانی کریں، آپ پابند ہیں، آپ نے اسلام آباد کے اندر یہ الیکٹرک بسیں چلانی ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی چھلانگ باہر لگائیں تو فتح جنگ اور حسن ابدال جو ہے آپ کی اپروچ میں ہے، ہمیں مہربانی کریں وہاں الیکٹرک بسیں دیں۔ اس کے لیے میں منسٹر انٹیریئر کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اپروول دی۔ پہلے 2 بسیں تھیں، اب اللہ کے فضل و کرم سے 6 بسیں فتح جنگ اور حسن ابدال کے لیے 50 روپے پہ میرے بچے اور بچیاں جو پڑھنے جاتے ہیں وہاں سے، اور وہ ملازمین جو صبح جاتے ہیں وہاں پہ اور شام میں واپس آتے ہیں، وہاں پہ وائی فائی اور اے سی والی بسوں پہ وہ جا رہے ہیں۔ مجھے اللہ نے موقع دیا، وہ ہو گیا۔ پھر بہت بڑا ضرورت تھی ہزروں والوں کی کہ ہمارے لوگ باہر ہیں، اور پاکستان بننے سے لے کے آج تک میں نے ہزروں سے الیکشن تو نہیں لڑنا، لیکن ہوں تو میں اٹک کا، اور ہزروں بھی اٹک میں ہے۔ ان کی ضرورت تھی پاسپورٹ آفس کی، اللہ کے فضل و کرم سے محسن نقوی صاحب کی مہربانی سے وہاں پہ ہم نے 15 دن کے اندر پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر دیا۔ اس کے علاوہ جیسے ملک امانت صاحب نے کہا، ڈھیر ساری وہ واٹر سپلائیز جو بند تھیں، جس میں جنڈ کی واٹر سپلائیز بھی شامل تھیں، عاطف شاہ صاحب کو پتہ ہے، جنڈ والوں کو بھی پتہ ہے، ان پہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے وسائل سے، اپنے دوستوں کی مدد سے ہم نے سولر سسٹم اس مالک کی مہربانی سے لگا دیا، اور اب یہ ہے کہ وہ بجلی کے بل سے جان چھٹ گئی اور لوگوں کو پانی ملنا جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ او جی ڈی سی ایل سے ہم نے ماڑی جلوال کے لیے جو ہے وہ 18 کلومیٹر کی روڈ اللہ کے فضل و کرم سے بن گئی، وہ 7 چوئی کے لیے اس کے لیے بن گئی، ابھی پھر ایک اور روڈ ادھر سے بنا رہے ہیں۔ یہ ساری وہ ہیں جو حکومت کے پیسے کے علاوہ چیزیں ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے اس آئینی عہدے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ اور
ڈائلائسس سینٹر پنڈی گیب ہاسپٹل میں شروع ہو چکا ہے. اب عاطف شاہ صاحب کی ڈیمانڈ پہ بہت جلدی پنجاب ریڈ کریسنٹ جو میرے انڈر ہے اس کے تھرو ہم انشاءاللہ آپ کی جنڈ ہاسپٹل میں 4 مشینیں 5 مشینیں 2 جی ڈی سی ایل نے دی تھی جو آلریڈی پڑی ہیں اور 1 مشین اور پڑی ہے 3 اور 2 اور مشینیں لے کے 5 مشینوں سے انشاءاللہ بہت جلدی ڈائلائسس سینٹر انشاءاللہ ہم اس آپ کے ہاسپٹل میں اللہ کے فضل و کرم سے فنکشنل کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنڈ کے لیے اور پورے اٹک کا یہ پرابلم ہے لیکن جنڈ میں جو میں نے محسوس کیا کہ ہمارے بچیاں جب ڈیلیوری کیس ہوتا ہے تو بہت بڑا ایک پرابلم ہے اور ہماری بچیاں رستے میں ایکسپائر ہو جاتی ہیں یا زچہ بچہ دونوں کی جان جو ہے وہ خطرے میں پڑتی ہے. تو اس کے لیے پنجاب ریڈ کریسنٹ کے ساتھ مل کے اسی آپ کے سرکاری ہاسپٹل میں ایک بہترین ہم زچہ بچہ سینٹر انشاءاللہ اگلے مہینے 1.5 میں جو ہے وہ شروع کر دیں گے اور جس میں اللہ کے فضل و کرم سے 24 گھنٹے جو لیڈی ڈاکٹر ہے ایک اچھی ٹاپ لیول کی وہاں پہ موجود ہوگی, پورا عملہ موجود ہوگا جس کی تنخواہ ہم پنجاب ریڈ کریسنٹ کے تھرو دیں گے اور انتظامیہ کی مدد کریں گے اس میں انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن میں کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ اور کر رہے ہیں. جیسے ملک امانت صاحب نے بتایا کہ شہید بے نظیر بھٹو کے نام سے جو دیکھیں ایکسیڈنٹ ہوتا تھا کوارٹ تک رستے میں مریض جب جاتے تھے تو بلیڈنگ اتنی ہو جاتی تھی کیونکہ بلڈ بینک تھا نہیں, بہت ساری جانیں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی تھی. اس کے لیے فتح جنگ میں وہ جو ڈائلائسس سینٹر بنایا شہید بے نظیر بھٹو کے نام سے پرائیویٹ جگہ پہ, ادھر ڈائلائسس سینٹر بھی ہے, بلڈ بینک بھی ہے اور ہمارے وہ بچے جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں اور اس پورے ایریا میں تھیلیسیمیا کے لیے کوئی سینٹر نہیں تھا, ان کے لیے بھی وہاں پہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا سینٹر بھی بنایا ہے اور وہ بہترین طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے کام کر رہے ہیں اسکولوں کے حوالے سے. اور دوسرا میں انشاءاللہ اور جیسے ملک امانت صاحب نے کہا اپنے غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے, کیونکہ اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے اور اللہ اس سے میرے سے پوچھے گا بھی کہ تمہیں میں نے اتنے بڑا عہدہ دیا تھا, تم یہ مجھے بتاؤ کہ تم نے ان غریبوں کے لیے کیا کیا جن کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی بچی جو ہے وہ وسائل کی کمی سے شادی سے نہیں رہے گی. آپ نے ابھی ہم 35 ہم نے کرنی تو 45 تھی لیکن ہمارے پاس جو ڈیٹا ملا وہ 35 کا ملا. اسی مہینے کی 24 تاریخ کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے وہ 35 شادیاں جو ہے وہ فتح جنگ میں کر رہے ہیں جس میں 9 میری بیٹیاں جو ہیں وہ جنڈ کی بھی ہیں ان 35 میں. اور وہاں پہ جو ہے مکمل جہیز وہ ہمارے میاں حنیف صاحب ہیں 92 نیوز والے, بڑے زبردست وہ بزنس مین ہیں. ان تمام 35 بچیوں کا جہیز جو ہے وہ میاں حنیف صاحب اپنی جیب سے دیں گے. اور وہاں پہ ہم ایسے نہیں کریں گے کیونکہ میں ان کا باپ ہوں, تو وہاں پوری ہم ان جو براتیں آئیں گی ان کو بھی ویلکم کریں گے اور 1500 سے 2000 بندوں کا وہاں پہ باعزت طریقے سے کھانا جو ہے وہ میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں لگ بھگ. اور اس کے علاوہ ہمارے وہ بھائی کہ جو زہر ہے مجھے پتہ ہے کہ مشکل دور ہے اور اس میں اپنی سفید پوشی کو برقرار رکھنا بھی بڑا مشکل ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اجتماعی شادیوں میں ہی ہم نے آپ کو جو ہے اکاموڈیٹ کرنا ہے. جو بھی میرا بھائی یا میری بہن کسی پریشانی میں ہو, بچی کی شادی نہ ہو سکتی ہو, خاموشی سے آپ نے آ کے ان شادیوں کے لیے ہم نے فوکل پرسن فتح جنگ سے ملک کامران خاکی صاحب ہیں ان کو بنایا ہے. لیکن یہاں پہ آپ ملک اپنا عاطف شاہ صاحب کے پاس یا کسی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست کے پاس آئیں گے, خاموشی سے اسے بتا دیں کہ میں پرابلم میں ہوں, میں بچی کی شادی نہیں کر سکتا, ہم خاموشی سے چیک انشاءاللہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے. اور کوئی بچی جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ پریشان نہ ہو. اسی طرح بہت سارے کام ہیں جو کرنے ہیں لیکن انشاءاللہ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے, میں نے بہت ساری آگے جگہوں پہ بھی جانا ہے. تو آپ یہ یقین رکھیں کہ میری یہ جو گورنرشپ ہے اس کا ایک ایک منٹ
इंशाल्लाह अपने लोगों के लिए है, और उसका एक एक मिनट अपनी धरती को उस जगह पे लाने के लिए है। मुझे ये पता है कि अटक जो है वो बड़ा बैकवर्ड है, और खासकर पिंडी गेब और जंड की जो तहसीलें हैं, मैं डीसी साहब की मीटिंग में गया और वहाँ पे उन्होंने मुझे ब्रीफिंग दी, तो स्कूलों के हवाले से सीईओ एजुकेशन साहब बैठे हैं। एक कोई प्रोग्राम था, 9 प्रोग्राम जो है वो कोई स्पोर्ट थी जो करनी थी उन्होंने, तो जो मुझे ब्रीफिंग दी गई उसमें से 7 वो जो था वो सारा हसन अब्दाल, अटक और हजरों की तहसीलों में गए, और 2 जो है वो पहाड़ से और इन 3 तहसीलों में आए। तो मैंने डी साहब को कहा कि देखें, अरसे से ये 3 तहसीलें जो है इग्नोर हो रही हैं, कि लाहौर से पहली बात तो ये है कि इधर पहुंचते पहुंचते ही चीजें खत्म हो जाती हैं, और अगर कोई चीज आती है तो उसमें से ज्यादा उन 3 तहसीलों को दे दिया जाता है और इन तहसीलों को नहीं पूछा जाता। तो मेहरबानी करें, इनका भी ख्याल करें। तो राणा साहब हमारे भाई हैं, एजुकेशन मिनिस्टर मेरे छोटे भाई हैं, बहुत जबरदस्त इंसान हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि तालीम के हवाले से जो है वो चीजें बेहतर हों, लेकिन अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, और हमने उनके साथ मिलकर मेहनत करनी है और अपना हिस्सा जो है वो उसमें शामिल करना है। अगर मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि अगर सरकारी वसाइल की कमी है, और जैसे मैंने कहा कि लाहौर से यहाँ पहुंचते पहुंचते चीजें रास्ते में जो है वो खत्म हो जाती हैं, अगर सरकारी स्कूल ठीक हो तो प्राइवेट स्कूल का बिजनेस नहीं हो सकता। आज के दिन आप अगर देखें ना, तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो प्राइवेट स्कूलों का है, और उसकी वजह क्या है कि मैं इसका जिम्मेदार हूं, मैं गवर्नर हूं पंजाब का, तो मैं खुद इसका जिम्मेदार अपने आप को समझता हूं कि सरकारी स्कूल हम उस लेवल तक नहीं जा सके कि हमारे लोग जो हैं वो बजाय सरकारी स्कूलों की तरफ मुतवज्जो होने के प्राइवेट स्कूलों में जाएं। और ये भी पता है कि गुर्बत है, कमजोरी है, मुतवस्सित तबके के लोग हैं, वो प्राइवेट स्कूलों की फीसेस नहीं दे सकते, लेकिन इसके बावजूद आप देखें तो प्राइवेट स्कूल्स भरे हुए हैं और सरकारी स्कूल्स जो हैं वो खाली हैं। तो उसके लिए हम पे जिम्मेदारी आयद होती है और हमने उसको ठीक करना है। और जैसे सीईओ एजुकेशन साहब ने कहा, मैं उनको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ कि ये आएँ और गवर्नर ऑफिस में मीटिंग करें हमारे लोगों के साथ। जिस तरह का डेस्क ये कहेंगे हम गवर्नर ऑफिस में इंशाल्लाह कायम कर देंगे। और नाज़रीन, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का अटक में तकरीब से खिताब, कहा तलबा को जदीद सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। सुबह पंजाब के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है, अटक ज़िले के नौजवानों को बाइख्तियार बनाना भी हमारी तरजीह है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। तहम शाम और रात के औकात में बालाई वस्ती इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। तहम गवादर में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद, खित्ता पठवार और कश्मीर में सुबह के औकात में चंद मकामात पर कोहरा पड़ा। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी अजला में दरमियानी से शदीद धुंध छाई रही। और मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद 0, कोयटा -3, मुल्तान 3, स्कर्दू -14, गिलगित -8, जबकि मुजफ्फराबाद में -1 और श्रीनगर में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का।
कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत अफगानिस्तान में सिन्फी इम्तियाज़ के खिलाफ अफगान ख़वातीन ने आलमी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अफगान मीडिया आमो टीवी के मुताबिक अफगान ख़वातीन के एडवोकेसी ग्रुप ने 8 हफ्तों पर मुश्तमिल मुहिम अब सिन्फी इम्तियाज़ ख़त्म करने का आगाज़ कर दिया है। अफगान तंजीमों का कहना है कि ख़वातीन को अवामी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर बाहर कर दिया गया है, जबकि लड़कियाँ तालीम से महरूम हैं, जिससे एक पूरी नस्ल के मुस्तकबिल को शदीद खतरा लाहिक है। यूनेस्को के मुताबिक 22 लाख अफगान लड़कियाँ अब भी स्कूल नहीं जा सकती, जबकि UN विमेन रिपोर्ट बताती है कि हर 10 में से 8 लड़कियां तालीम और रोजगार से महरूम हैं। माहिरीन के मुताबिक ये मुहिम तालिबान जबर के खिलाफ अफगान ख़वातीन की खुली मुज़ाहमत है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा है कि पाकिस्तान नौजवान अफरादी क़ुव्वत, कम लागत लेबर और तेज़ी से बढ़ती टेक्नोलॉजी की बदौलत सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुल्क है। कराची में 8वीं पाकिस्तान एडिबल ऑयल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तिजारत ने खुर्दनी तेल और बीजों के शोबे के अहम किरदार को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान इलाकाई और आलमी मंडियों के लिए बेमिसाल मौक़े फराहम करता है। उन्होंने कहा कि तिजारत रिवायती दायरे से निकलकर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल रही है। खुर्दनी तेल और तेलदार बीज मौशी तावन और सरमायाकारी के फ़रोग़ की मजबूत बुनियाद हैं। उन्होंने सदर इंडोनेशिया के दौरे पाकिस्तान को मुस्बत और नतीजा खेज करार देते हुए दोनों ममालिक के दरमियान पाम ऑयल और दीगर अजनास में दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया की जानिब से पाकिस्तान के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स में तिजारती ताउन में दिलचस्पी का इज़हार किया गया है। मलेशिया, अमरीका और कनाडा ने भी पाकिस्तान के साथ तिजारत में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने कहा कि हुकूमत बाहमी मफाद पर मबनी तिजारती शराकतदारियों के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर उन्होंने मौशी इस्लाहात, कारोबारी आसानियों और बरामदात पर मबनी तरक्की पर रोशनी डालते हुए पाकिस्तान एडिबल ऑयल रिफाइनरीज एसोसिएशन और सीड एसोसिएशन के किरदार की भी तारीफ की। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि नाअहल मोदी की नाकाम सिफारतकारी और हिमाकत ने अमरीकी टैरिफ से भारतीय अवाम को मजीद मुश्किलात में डाल दिया है। दिखावा, झूठ, धोखे और तकब्बुर पर चलने वाली मोदी हुकूमत की नाकाम ख़ारजा पॉलिसी बेनकाब हो चुकी है। भारी अमरीकी टैरिफ और तिजारती मुआहदे की नाकामी ने भारतीय मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। अमरीकी वज़ीर तिजारत ने भारत के साथ तिजारती मुआहदे की नाकामी की असल वजह मोदी की हठधर्मी को करार दिया है। अमरीकी वज़ीर तिजारत ने इंकशाफ किया कि मोदी घबराहट का शिकार था, जिसकी वजह से उसने ट्रंप को फ़ोन नहीं किया। अमरीकी वज़ीर तिजारत का मज़ीद कहना है कि भारत के बजाय इंडोनेशिया, फिलिपीन और वियतनाम के साथ तिजारती मुआहदे किए गए हैं। भारतीय जरीदा दी हिंदू के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप भारत को मुर्दा मईशत करार दे चुके हैं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि अमरीका की जानिब से 500% तक बड़े टैरिफ के नफाज का शिकंजा एक और सिफारती शिकस्त की सूरत में तैयार है। नाअहल मोदी की नाकाम सिफारतकारी और हिमाकत का खमियाजा भारत की अवाम भुगत रहे हैं। बांग्लादेश ने हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र भारत को सख्त जवाब दे दिया है। बांग्लादेशी वजारत खारजा के मुताबिक भारत में मौजूद 3 अहम सिफारती मिशंस नई दिल्ली, कोलकाता और अगरतला में वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं। भारतीय मीडिया NDTV ने भी इस इकदाम की तस्दीक कर दी है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक भारतीय मुदाखलत और इंतहा पसंदी के बायस बांग्लादेश ने IPL की नशरियात पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने सिक्योरिटी वजूहात पर भारत में वर्ल्ड कप मैचेस न खेलने का फैसला किया है। माहिरीन के मुताबिक भारत की खित्ते में मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा बनती जा रही है। पाकिस्तान और अमरीका की 13वीं मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड कम्बैट 9 जनवरी से नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में जारी है। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजर्बात के इश्तराक के जरिए बाहिमी अफाहम तफहीम और ताउन को बढ़ाना और मौसर इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के लिए ज़रूरी हिकमत अमली, तकनीक और तरीक़ाकार को मजीद बेहतर बनाना है। मश्कों में शहरी जंग के दौरान निशानाबाजी की महारतों के साथ एक दूसरे के ऑपरेशनल नजरियात और बेहतरीन तरीकों को समझने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस तरह की मुश्तरका तरबियती मशकें उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने, पेशावराना फौजी मयार को बेहतर बनाने और इंसदाद दहशतगर्दी के पेचीदा माहौल में काम करने के लिए दोनों अफवाज की सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए अहम है। इक़दाम अमन और इस्तेहकाम की मुश्तरका कोशिशों के लिए पाकिस्तान और अमरीका के मुसलसल अज़्म की अक्कासी करता है। नाज़रीन, हुकूमत की माशी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामज़न, ज़र मुबादला के ज़खायर $21 अरब से तजावुज़ कर गए। तफसील बताएंगे कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते में स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार रहा और मार्केट में तकरीबन 5,375 पॉइंट से इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इसी दौरान मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,87,905 पर भी पहुंची।
1 जनवरी से अब तक स्टॉक मार्केट में 10,355 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसियों और इनके समरात की वजह से सरमाएकार पुरएतमाद अंदाज से सरमाएकारी कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट 22% से 10.5% पे आया, तो बैंकों से पैसा निकल के जो है फिर स्टॉक मार्केट में आया। पाकिस्तान कैपिटल मार्केट में तो बहुत पोटेंशियल है, असल में रिटर्न वाइज बहुत अच्छी है। आप एज कम्पेयर टू आप 3 साल का हम रिकॉर्ड निकालें, तकरीबन लास्ट ईयर भी 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया। इससे पहले हम जाएं तो तकरीबन 80% से ज्यादा का रिटर्न दिया। तो मार्केट में पोटेंशियल है, आप इसका 3 साल की हिस्ट्री देख सकते हैं। इसमें बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, और इसके साथ साथ आपने देखा कि स्टील सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। आप कैपिटलाइजेशन देखें तो 14,500 से तकरीबन 20,000 अरब तक पहुंच गई है। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक दिसंबर के महीने में समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से 3.6 अरब डॉलर्स की रिकॉर्ड तरसीलात भेजी गयी। ये तरसीलात साल ब साल की बुनियाद पर 16.5%, जबकि माहाना बुनियादों पर 12.6% से जायद हैं। अब तक मजमूई तौर पर रवा माली साल के 6 माह में 19.7 अरब डॉलर्स की तरसीलात मौसूल हो चुकी हैं, जो कि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले 10% जायद है। इसके अलावा मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर भी 21 अरब डॉलर से तजावज कर गए हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के 6 माह के अंदर 21,600 से जायद नई कंपनियां रजिस्टर्ड की गई हैं, जो मुल्क में सरमायाकारों की बढ़ती दिलचस्पी को जाहिर करता है। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 आपपारा में शादी के मौके पर घर में गैस सिलेंडर धमाके से 4 घर मुतासिर हुए। पुलिस के मुताबिक रात 2 बजे बारात के घर पहुंचने के बाद धमाका हुआ, जिससे इमारत का हिस्सा गिर गया और मलबे तले दबकर दुल्हा और दुल्हन समेत 6 अफराद जान बहक हो गए। मजीद 9 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ज़िले हुकाम और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल साहिबजादा यूसुफ मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर धमाके की वजूहात का तयन बाद में किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और इस साहने पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सिलेंडर धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस करते हुए ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। वज़ीर आज़म ने मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआ की और उनके अहल खाना के साथ हमदर्दी का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत और पिम्स इंतज़ामिया को अलर्ट रहने और ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी जारी की। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी दाखिला को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को सिलेंडर्स के इस्तेमाल में हिफाजती तदाबीर के हवाले से शहरियों को आगाही फराहम करने की भी हिदायत की। और यादगारी डाक टिकटों की नुमाइश। पाकिस्तान पोस्ट जदीद मवासलाती खिदमात के साथ साथ यादगारी डाक टिकटों के जरिए कौमी, समाजी और तारीखी वर्से को महफूज करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इसी सिलसिले में मुल्तान जनरल पोस्ट ऑफिस में यादगारी डाक टिकट्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। पाकिस्तान की तारीख, शनाख्त और आलमी रवाबित को एक फ्रेम में समोए हुए यादगारी डाक टिकटों की इस नुमाइश ने शायकीन की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कर ली। नुमाइश में पेश किए गए डाक टिकटों में कौमी शख्सियात, तारीखी मुकामात, अलामती इदारों और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मौज़ूआत नुमाया रहे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से और निशान हैदर जिनको मिला हमारे उन शोहदा के हवाले से, इसी तरह जो अदीब हैं, जो शायर हैं, या जो इलाके के लिहाज से जैसे मुल्तान है या और ऐसे हमारे इदारे हैं, तो स्टैम्प्स की शक्ल में पोस्ट ऑफिस ने उनको हाईलाइट किया है। 2000 के करीब यादगारी टिकट जारी किए जा चुके हैं। उनकी नुमाइश का एहतमाम किया गया और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया। तहरीक पाकिस्तान या पाकिस्तान की नुमाया शख्सियात या नुमाया मकामात। नुमाइश में अवाम और स्टैम्प कलेक्टर्स ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया, जबकि नुमाया कलेक्टर्स को तारीफी सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। तकरीब में पाकिस्तान पोस्ट के अफसरान और मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। मुख्तलिफ अदारों में भी जाके करना चाहिए डिस्प्ले, ताकि आम लोगों तक भी ये रसाई हो कि हमारे जो कौमी हीरोज़ है और हमारे शायर है, हमारा कल्चर है, उसको हम रिप्रेजेंट करें। डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को के हवाले से जो कमेमोरेटिव स्टैम्प्स जो है वो इशू करता है, उसकी आज हमने एग्जीबिशन रखी है और इससे हम अपने कल्चर को, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ की कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट कर रहे हैं। पाकिस्तान पोस्ट की ये नुमाइश ना सिर्फ डाक टिकटों की रवायत को जिंदा रखती है, बल्कि तारीखी विरसे और कौमी शनाख्त की बसरी दस्तावेज भी पेश करती है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान।
नाज़रीन, खेल में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा T20 मैच आज दम्बोला में खेला जाएगा। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल है। पहले मैच में पाकिस्तान ने 6 विकेटों से कामयाबी समेटी। दूसरा मैच बारिश की नजर हुआ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। बिग बैश लीग में आज भी 2 मैच खेले जाएंगे। सिडनी में हॉबार्ट हरिकेन्स और सिडनी सिक्सर्स के दरमियान खेला जाने वाला मैच बारिश की नजर हो गया। आज के दूसरे मैच में एडिलेड स्ट्राइकर्स और पर्थ स्कॉचर्स 1:15 बजे एडिलेड में मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट के 31वें मैच में लीग लीडर हॉबार्ट हरिकेन्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। सिडनी सिक्सर्स ने 5 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 32 रन स्कोर किए कि बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद मैच दोबारा शुरू ना हो सका और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। BBL पॉइंट्स टेबल पर हॉबार्ट हरिकेन्स 13 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर काबिज है। मेलबर्न स्टार्स दूसरे और सिडनी सिक्सर्स तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। बिग बैश लीग मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बिग बैश क्रिकेट लीग के तीसरे मैच में मेलबर्न स्टार्स ने मेलबर्न रेनिगेट्स को 8 विकेटों से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। मेलबर्न में खेले गए मैच में रेनिगेट्स पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बना सके। ओपनर कॉश ब्राउन ने 50 गेंदों पर 80 रन स्कोर किए, जिसमें 4 छक्के और 7 चौके शामिल थे। हसन खान 23 और मोहम्मद रिजवान 21 रन बना सके। मेलबर्न स्टार्स की जानिब से मार्कस टॉयनिस ने 3 और हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मेलबर्न स्टार्स ने 167 रन का हदफ 16वें ओवर में बआसानी 2 विकेटें गंवाकर हासिल किया। ओपनर सैम हार्पर ने 51 गेंदों पर 84 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के और 8 चौके शामिल थे। थॉमस रॉजर्स ने 24 गेंदों पर 53 रन स्कोर किए। ग्लेन मैक्सवेल 20 रन पर नाकाबिल शिकस्त बैठे रहे। मेलबर्न रेनिगेट्स की जानिब से हसन खान 1 विकेट हासिल कर सके। सैम हार्पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। नाज़रीन, पाकिस्तानी MMA फाइटर अनीता करीम ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान में ख़वातीन की पहली प्रोफेशनल वुमेन्स MMA फाइट अनीता करीम के नाम रही। इस्लामाबाद में प्रोफेशनल MMA लीग इन्फिनिट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन की 52 किलोग्राम टाइटल फाइट में पाकिस्तान और ईरान आमने सामने हुए। टाइटल फाइट में अनीता करीम ने ईरान की खिलाड़ी को पहले ही राउंड में नॉकआउट करके बेल्ट हासिल कर ली। हुंजा से ताल्लुक रखने वाली अनीता करीम पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल MMA फाइटर हैं, जिन्होंने बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शानदार फतूहात हासिल की। अनीता करीम ने पहली मरतबा अपनी सरजमीन पर प्रोफेशनल MMA टाइटल फाइट जीती है। Professional female champion Anita जिला कीच तुर्बत में स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हवाले से मकरान डिवीजन की तारीख में पहली मरतबा 5 किलोमीटर मैराथन रेस मुनक्किद की गई। दौड़ में मकरान डिवीजन भर से हजारों नौजवानों और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। मैराथन रेस तुर्बत प्रेस क्लब से शुरू होकर मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई तुर्बत फुटबॉल स्टेडियम पर विनिंग पॉइंट पर इख्तिताम पजीर हुई। जोसक तुर्बत के अयाज बलोच ने पहली पोजीशन हासिल की। पंजगूर के मोहम्मद बलोच दूसरे और मलिकाबाद तुर्बत के अदीब नसीम तीसरे नंबर पर रहे। कमिश्नर मकरान डिवीजन कादिर बख्श पिरकानी और डिप्टी कमिश्नर केच बशीर अहमद बड़ीच ने पोजीशन होल्डर्स और दूसरे एथलीट्स में इनामात तकसीम किए। ICC मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला बारिश के बायस
منسوخ کر دیا گیا۔ زمبابوے کے موسونگو سپورٹس کلب میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان انڈر 19 نے ٹاس جیت کر بنگلہ دیش انڈر 19 ٹیم کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ بنگلہ دیش انڈر 19 نے 36.3 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 152 رن سکور کیے۔ کلام صدیقی 71 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستان انڈر 19 کے علی رضا نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ لگاتار بارش کی وجہ سے باقی کی اننگز مکمل نہ ہو سکی اور پاکستان کی بیٹنگ کی بھی باری نہ آئی۔ انڈر 19 ورلڈ کپ 15 جنوری سے زمبابوے اور نیمیبیا میں کھیلا جائے گا۔ افتتاحی میچ میں بھارت کی انڈر 19 ٹیم کا مقابلہ امریکہ سے ہوگا۔ گروپ سی میں شامل پاکستان انڈر 19 ٹیم اپنا پہلا میچ 16 جنوری کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستانی مارشل آرٹس ٹیم نے ازبکستان میں انٹرنیشنل کامن ویلتھ کراٹے ٹورنامنٹ میں 3 گولڈ میڈل اپنے نام کر لیے۔ اسلام آباد میں فاتح ٹیم کے اعزاز میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ راجہ مارشل آرٹس کلب کی جانب سے گولڈ میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں میں مس لائبہ رب نواز جنجوعہ، مس عائشہ ارم اور عبداللہ شامل تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ کھلاڑیوں نے گولڈ میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کیا۔ مستقبل میں بھی وہ شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اور ناظرین، کھیل سے فی الوقت اتنا ہی، اب آپ کو لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ سمیر۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز نیوز کے ساتھ رہیے۔